Hello friends, last lecture we have discussed the different theories of the acid and base. Today we are going to start next points, that is dissociation constant for weak acid. ये पॉइंट अभी आपको क्या करना है, डिस्कस करना है. Dissociation constant for weak acid. What is my dissociation constant for weak acid? The equilibrium constant is obtained by the applying the law of mass action to the dissociation reaction of weak acid is known as उसे क्या कहते हैं, dissociation constant for weak acid. What is my dissociation constant for weak acid? The equilibrium constant is obtained by the applying the law of mass action to the dissociation reaction of weak acid at equilibrium is known as the dissociation constant for weak acid. Consider the dissociation reaction of weak acid HA, it gives H plus plus A minus. यहाँ पे आपने एक वीक एसिड कंसीडर किया है HA, उसकी डिसोसिएटेड रिएक्शन H plus plus A minus. Now applying the law of mass action to the dissociated reaction. अब इस रिएक्शन के ऊपर क्या अप्लाई करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है. Ka is equal to concentration of the H plus into concentration of the A minus divided by the concentration of the HA. Okay, where Ka is the, यहाँ पे where Ka is the dissociation constant और एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ द किसका, एसिड का. के क्या है, वेयर के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ द व्हाट, एसिड के. द हायर द वैल्यूज ऑफ द के की वैल्यू कैसी होंगी, हायर द वैल्यू ऑफ द के दे आर द स्ट्रॉन्गर द, वो कैसा एसिड रहता है, दे आर द स्ट्रॉन्गर द एसिड. ख्याल में रखिए, हायर दी वैल्यूज ऑफ द के ए दी स्ट्रॉन्गर द, कैसा एसिड रहता है, स्ट्रॉन्गर एसिड रहता है. व्हाट इज माय डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय the applying the law of mass action to the dissociated reaction of weak acid at equilibrium is known as the dissociation constant for weak acid. Consider the dissociated reaction of weak acid. ये weak acid consider किया मैंने HA, उसके dissociated reaction. इस reaction को ऊपर क्या अप्लाई करना है, applying the law of mass action of this dissociated reaction, where Ka is the dissociation constant और acidity constant of the किसका, acid का. Higher the values of the के की वैल्यू ज्यादा होंगी तो दैट एसिड इज, वो कैसा एसिड रहता है, स्ट्रॉन्गर एसिड रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस. अभी जो पॉइंट आपको देखना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, गिव द हेडिंग. What is my dissociation constant for weak base? The equilibrium constant is obtained by the applying the law of mass action to the dissociated reaction of base at equilibrium is known as, उसे क्या कहते हैं, dissociation constant for weak base. Listen carefully. What is by dissociation constant for weak base? इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए. इट इज डिफाइंड एज
the equilibrium constant is obtained by the applying the law of mass action to the dissociated reaction of base at equilibrium is known as, उसे क्या कहते हैं, dissociated constant for weak base. Consider the dissociated reaction of weak base. कौन सा? BOH ये लिया है, उसकी डिसोसिएटेड रिएक्शन करेंगे, दैट इज डिसोसिएट करेंगे BOH, it gives B plus plus OH minus. The applying the law of mass action to the dissociated reaction. इस रिएक्शन के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन. KB is equal to concentration of the B plus into concentration of the OH minus divided by the concentration of the BOH, where KB is the, यहाँ पे KB क्या, where KB is the dissociated constant of base या basicity of the किसकी? बेस की. where KB is the dissociated constant या dissociated constant of base या basicity of the किसकी? बेस की. if higher the values of the KB की वैल्यू कैसी होंगी? हायर दी वैल्यूज ऑफ द KB, दे आर दी, वो कैसा बेस होगा? दे आर दी स्ट्रॉन्गर. द कैसा बेस रहता है? स्ट्रॉन्गर बेस रहता है. जब KB की वैल्यू ज्यादा होंगी वो बेस कैसा रहता है? स्ट्रॉन्गर बेस रहता है. व्हाट इज माय डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस? KB. The equilibrium constant is obtained by the applying the law of mass action to the dissociated reaction of the base at equilibrium is known as the dissociated constant for weak base. और यहाँ पे एक पॉइंट ख्याल में रखिए, जब KB की वैल्यू ज्यादा होंगी तो कैसा बेस रहता है? स्ट्रॉन्गर बेस रहता है. ओके, यहाँ पे आपने दो कंसेप्ट डिस्कस किए, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस. नेक्स्ट पॉइंट्स, दैट इज द, अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. गिव द हेडिंग ऑस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ. अभी जो पॉइंट आपको डिस्कस करना है, ऑस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ. It is very important points. On that point in the board examination या different competitive examination में भी ask the question. What is, फिर अभी यहाँ पे आपको ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये पॉइंट क्या करना है? क्लियर करना है. In 1888, कब? In 1888, Ostwald is applied the law of mass action to the dissociated reaction of weak electrolytes. कब? 1888. Ostwald is applied the law of mass action to the dissociated reaction of the weak electrolyte and express the relation between the degree of dissociation and dissociation constant. and उन्होंने उसका एक्सप्रेशन करके उन्होंने रिलेशन बताया किसके बारे में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. लिसन केयरफुली, क्या बताया मैंने? इन 1888 the Ostwald applied the law of mass action to the dissociated reaction of the weak electrolyte and give the expression and give the relation between the degree of dissociation and dissociation constant का उन्होंने क्या बताया है? रिलेशन बताया. किन्होंने? ऑस्टवाल्ड ने. क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन किसके ऊपर अप्लाई किया? वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर. और उसके अप्लाई करने के बाद दे आर गिव द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में उन्होंने रिलेशन बताया है. नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का क्या देखेंगे? स्टेटमेंट देखेंगे.
it state that the degree of dissociation of the weak electrolyte is inversely proportional to the square root of its concentration and directly proportional to the, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डाइल्यूशन, is known as the Ostwald dilution law. What is the Ostwald dilution law? It states that the degree of dissociation of the weak electrolyte is inversely proportional to the square root of the concentration or and डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डाइल्यूशन का. ये किसका स्टेटमेंट है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का. फिर से वंस अगेन, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? इट स्टेट दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन or directly proportional to the square root of its the dilution. Okay, now फिर अभी यहाँ पे आपको देखना है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर द वीक एसिड. ये आपको हेडिंग देना, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर द व्हाट, वीक एसिड. Consider the 1 mole of the weak acid. Consider the 1 mole of the weak acid in the किसमें, VDM cube of the solution. Consider the 1 mole of the weak acid in the VDM cube of the solution, and alpha is the degree of the dissociation. अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. First of all, consider the 1 mole of the weak electrolyte HA are present in the VDM cube of the solution, and alpha is the क्या है, degree of dissociation. Now the dissociation reaction of the किसकी, weak acid की क्या करेंगे, dissociated reaction. देखिए HA it gives H प्लस प्लस A माइनस. एक कौन सी रिएक्शन नोट डाउन की मैंने, डिसोसिएटेड रिएक्शन ऑफ द वीक एसिड. नाउ फिर यहाँ पे इनिशियल मोल्स सबसे पहले देखेंगे. इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल HA के स्टार्टिंग को कितना है, 1 है, और H प्लस और A माइनस के क्या रहते हैं, 0 रहता है. नेक्स्ट, moles at equilibrium. Second one is a moles at equilibrium. जब इक्विलिब्रियम रहेगा तब मोल्स एट इक्विलिब्रियम HA के कितने, 1 माइनस अल्फा, H प्लस का अल्फा और ये माइनस का क्या रहता है, अल्फा. नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इन किसमें, मोल पर डीएम क्यूब में, मोल पर डीएम क्यूब. कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितने वॉल्यूम, VDM क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V, अल्फा डिवाइडेड बाय V, अल्फा डिवाइडेड बाय V. ये सबसे पहले आपको ये ऐसा चार्ट बनाना है. ओके, फिर से बताता हूं. Ostwald dilution law for weak acid. Consider the 1 mole of the weak acid HA are the present in the किसमें, VDM cube of the solution, and alpha is the degree of dissociation. The dissociated reaction of the weak acid, ये dissociated reaction है, वहां पे उसके initial moles at equilibrium and concentration at equilibrium in mole per dm cube. Now applying the law of mass action to the dissociated reaction of the weak acid, ये जो रिएक्शन उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, अभी आपको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है. देखिए कि A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द A माइनस डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द HA. इसके ऊपर इस डिसोसिएटेड रिएक्शन के ऊपर अपने क्या अप्लाई किया, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया है.
Now putting the values of the concentration at equilibrium, ये कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम के समय की वैल्यू इसमें क्या करना, आपको पुट करना है। के ए इज इक्वल टू एच प्लस क्या है, अल्फा डिवाइडेड बाय व्ही इंटू ए माइनस क्या है, अल्फा डिवाइडेड बाय व्ही, आणि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए क्या है, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय व्ही। अभी उसको सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, v into v square into v divided by the what, 1 minus alpha. Now v a square cancel is equal to k a is equal to, अभी क्या रहेगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय the 1 minus alpha into v. Okay, now for the weak acid, the 1 minus alpha is very small, they are approximate equal to 1 रहता है. For the weak acid, the 1 minus alpha is approximate equal to क्या रहता है, 1 रहता है. Therefore Ka is equal to अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, v. यहाँ पे मैंने 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या लिया है, 1 लिया है. देयरफॉर k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v है. नाउ देखिए यहाँ पे बट कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू अपॉन क्या रहता है, 1 अपॉन V रहता है. ये आपने सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्टडी किया है. नाउ देखिए Ka इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू व्हाट, C है. ओके, नाउ देखिए फिर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka अपॉन C. ओके, नाउ नहीं यहाँ पे ऐसा आप ले सकते हैं अभी, दैट इज अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू, नहीं तो सिंपली ऐसा कर सकते हैं उसको. ओके, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ए डिवाइडेड बाय द व्हाट, सी. नाउ फिर नहीं तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ए इंटू व्हाट इज दिस, v. बिकॉज 1 अपॉन सी क्या है, वॉल्यूम है. दैट इज सिंपली इज द अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 अपॉन सी, या अल्फा इज इक्वल टू दैट इज अ स्क्वायर रूट अपॉन v, स्क्वायर रूट इंटू v. के इज द क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड. दिस शोज दैट द, अभी यहाँ पे आप कैसा बता सकते हैं, दिस शोज दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एंड the degree of dissociation is directly proportional to the square root of its वॉल्यूम. जो मैंने यहाँ पे आपको ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड आपको स्टेटमेंट पता है, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने आपको बताया है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन. नहीं तो आप क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हो. This is the Ostwald dilution law for the what, weak acid. अभी एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, Ostwald dilution law for the weak base. क्योंकि यहाँ पे आपको Ostwald dilution law of the weak acid समझ में अंडरस्टैंड हो गया तो we can easily write the Ostwald dilution law for the weak base. यहाँ पे सेकंड लिखेंगे Ostwald dilution law for weak base के लिए. Now listen carefully. Consider the 1 mole of the weak base BOH
आर प्रेजेंट इन द VDM क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. कंसीडर करना है. कंसीडर द 1 मोल ऑफ द weak base BOH are present in the VDM cube of the solution में. Then and alpha is the degree of dissociation. अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. नाउ द डिसोसिएटेड रिएक्शन ऑफ द weak base की डिसोसिएटेड रिएक्शन BOH it gives B प्लस प्लस OH माइनस. ये उसकी डिसोसिएटेड रिएक्शन अपने नोट डाउन की है. नाउ फिर यहाँ पे इनिशियल मोल्स, कौन सा मोल? इनिशियल मोल्स कितना लेंगे? इनिशियल मोल्स 1, क्योंकि 1 है. दैट इज अ B प्लस का 0, OH माइनस का 0. नेक्स्ट मोल्स एट इक्विलिब्रियम. मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा. concentration at equilibrium in moles per dm cube. in moles पर dm क्यूब में 1 माइनस अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V. इस तरह से चार्ट आपको पहले बनाना है. ओके क्या बताया मैंने? कंसीडर दी 1 मोल ऑफ द वीक बेस आर प्रेजेंट इन द VDM क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन आणि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. द डिसोसिएटेड रिएक्शन ऑफ द वीक बेस की डिसोसिएटेड रिएक्शन उसका इनिशियल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आणि कॉन्सन्ट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इन मोल्स पर डीएम क्यूब. नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन to the dissociated reaction of the weak base, Kb is equal to concentration of the B plus into concentration of the OH minus आणि concentration of the BOH. इस रिएक्शन के ऊपर क्या अप्लाई करना आपको? लॉ ऑफ मास एक्शन. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द concentration at equilibrium इन दिस इक्वेशन. यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करना है? पुट करना है. देखिए concentration of the B plus alpha upon V into alpha upon V divided by BOH क्या है? 1 minus alpha upon V. Alpha into alpha that is alpha square V into V square into V upon 1 minus alpha. Here is a square and V is क्या होता है? कैंसल. अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 1 माइनस अल्फा इंटू V. ओके now 1 minus alpha for the weak base is approximate equal to क्या रहता है? 1 रहता है. ओके therefore Kb is equal to alpha square upon V. 1 minus alpha is approximate equal to क्या है? 1 है. therefore Kb is equal to alpha square upon V but C is equal to 1 upon V है. now Kb is equal to फिर alpha square into C. अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KB अपॉन C या अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KB इंटू V. अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 अपॉन C या अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटू V. Where KB is the dissociation constant for the base. This shows that the degree of dissociation of the weak base is inversely proportional to the square root of the concentration. Yeah, degree of dissociation is directly proportional to the square root of the dilution. This is the Ostwald dilution law for the किसका? weak base का. यहाँ पे अपने दो लॉ डिस्कस किए हैं. Ostwald dilution law for the weak acid and Ostwald dilution law for the weak base. Okay, good day.